Hey guys, welcome to my channel. तो कैसन बार है एकदम बढ़िया एकदम ठीक बा একদম সো গাইস আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতে তো হেভি পছন্দ করি হেভি ভালোবাসি বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেলিং করে করে নতুন নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করতে হেভি ভালোবাসি আমার তো হেভি ভালো লাগে তোমাদেরও আশা করি খুবই ভালো লাগে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় যাবো বিভিন্ন বিভিন্ন মানুষ দেখবো বিভিন্ন বিভিন্ন দৃশ্য প্রকৃতি কত কিছুই না দেখে মজা লাগে একদম একদম তো গাইস আমার তো ঘুরতে যেতে পছন্দ হয় ট্রেনে বাসে প্লেনে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় যাই কিন্তু আমাদের আর একটা বড় ড্রিম আছে আমার তো আছে তোমাদেরও আছে আমি জানি অবশ্যই থাকে এটা সবারই ড্রিম এটা সেটা হচ্ছে বাইক রাইডিং করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাওয়া স্পেশালি লাদাখ হিমালয়া এই সমস্ত জায়গায় তাই তো ঠিক বলেছে একদম 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 তো আমারও এটা ড্রিম কিন্তু গাইস তোমরা কি এটা জানো ওই সমস্ত লাদাখ হিমালয়া ওই সমস্ত জায়গায় অনেক আননোন অ্যাক্টিভিটিস ঘটে থাকে যেগুলো আমরা জানি না সেই আননোন অ্যাক্টিভিটিস এর সম্মুখীন অনেক মানুষ হয়েছে আমরা জানি না অনেক ঘটনা ঘটে যায় যেই সমস্ত জিনিস দেখার পর সেই সমস্ত মানুষ একদম ধরকম্পিত হয়ে যায় অনেক কিছুই ঘটে একদম ঠিক শুনছো তোমরা এইসব ঘটে ওই সমস্ত জায়গায় অনেক আনন্যাচারাল জিনিস ঘটে থাকে যেগুলো আমরা জানি না তো এই জিনিসটা জানার পর আমার পুরো শুকিয়ে গেছে কারণ আমার বড় ড্রিম যে আমিও বাইক রাইডিং করে বন্ধুদের সাথে হুল্লার মতো মস্তি মস্তি করতে করতে ওই সমস্ত জায়গায় যাবো কি একদম পুরো মজ করব কিন্তু তখন মাথায় এই জিনিসটা আসলো যে আমি ধরো ঘুরতে গেলাম গিয়ে যদি আমার সাথে ওইখানে এরকম টাইপের কোনো একটা আনন্যাচারাল জিনিস ঘটে যায় যেটা আমি কোনোদিনও ভাবতেও পারিনি যে আমার সাথে ঘটবে তখন কি হবে কি হবে আমার তোমরাও ধরো গেলে তোমাদের সাথে যদি ঘটে যায় তখন কি হবে তোমাদের ভেবে দেখেছো একদম হতেই পারে তো আজকে সেই রকমই আমরা কিছু ঘটনার সম্মুখীন হতে চলেছি তো আজকে আমরা হিমালয়ের কিছু ভুতিয়া কাণ্ড কারখানার জিনিস দেখবো একদম ঠিক তো সবাই একদম মনোবল একদম শক্ত ভক্ত করে টাইট করে বসে যাও আমিও বসে পড়েছি তো চলো ভিডিও স্টার্ট করা যাক আর ভিডিও স্টার্ট করার আগে গাইজ তোমাদের দুটো কথা বলবো যদি চ্যানেলে নতুন আসো তো সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই করে দিও ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব করে দিও সাবস্ক্রাইবটা করে দিও ঠিক আছে আর ভিডিও দেখতে দেখতে কিন্তু ছেড়ে চলে গেলে হবে না মানে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে হবে না ভিডিওটা আমার সাথে থাকতে হবে পুরোটা দেখতে হবে কারণ ভূতের ভিডিও আমার একা দেখতে পুরো ফাটে তো তোমরা যদি আমার সাথে থাকো তো আমার মনোবল একদম হাই লেভেলের যাবে আমার ভয়টা কম থাকবে কারণ আমি জানবো তোমরা আমার সাথে আছো ঠিক আছে তো ছেড়ে কিন্তু যাবো না আমার সাথে থাকবে ঠিক আছে তো আমরা যা ভয়ানক জিনিস ফেস করবো একসাথে ফেস করবো ঠিক আছে তো আর বেশি কথা না বলে চলো স্টার্ট করা আজকে ভিডিও লেটস স্টার্ট ইয়াহু मानव जाति को हमेशा ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है একদম जैसे कि কখনো ভাবে না যে সবকিছু জানি प्रेत आत्मा এসব জানো हिमालयन येटी জানো না हिमालयन येटी के আমিও बारे জানি में না बाद में बातें करेंगे पहले सिर्फ हिमालयाज के बारे में बात करते हैं একদম दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है सदियों से ना ही चाइनीज फौज ना ही पश्चिमी फौज ना ही ब्रिटिशर्स हिमालयस को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए हमें ये भी नहीं पता कि क्या भारतीय समाज ने पूरी तरह से हिमालयस को एक्सप्लोर किया है या नहीं लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द हिमालयस इज अनएक्सप्लोर्ड পুরি শালা ये सोचो कि हिमालयस के अंदर कितने सीक्रेट्स बसी हुई हैं একদম कितनी ऐसी প্রচুর चीजें সিক্রেট जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कितने छिपे हुए जानवर कितनी छिपी हुई कहानियाँ आज के व्लॉग में ऐसी ही कुछ छिपी हुई हिमालय की कहानियाँ जहाँ हम थोड़े से अजीब और करीब चीज़ों के बारे में बात करेंगे ऑकल्ट जो है अंग्रेजी में एक शब्द जो है कि बहुत प्रचलित हो गया। देखिए भूत का सरल शब्द यह है कि जो पास्ट में था मतलब है। 2 दिन पहले आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी ऑडियंस और मेरे भाइयों के साथ एक बार आप वो स्टोरी शेयर कर दो। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी दिस वाज लाइक 12-13 साल पहले की बात है जब मैं তো গাইস স্টোরি শুরু হয়ে গেছে তো মন দিয়ে শুনবে ঠিক আছে बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। हम 4 बद्रीनाथ। दोस्त थे तो हम लोग जब चौपता से आगे निकले तो मैं काफ़ी देर से देख रहा था एक गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी बलिनो नंबर थी तो बलिनो गाड़ी मेरे से लगभग 200-300 मीटर आगे चल रही थी तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर एक टर्न के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 किलोमीटर की सीधी रोड थी तो दैट इज़ अ रेयर साइट इन हिमालयाज। वो मेरे आगे आगे गाड़ी मुड़ी
मैंने उसके पीछे गाड़ी मोड़ी, लेकिन आगे जाकर जैसे ही मैंने देखी तो गाड़ी मुझे वो पूरे 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में सीधा विजिबल स्ट्रेच था, वो गाड़ी दिखी नहीं मुझे कहीं पर भी। तो थोड़ी देर बाद मुझे वो गाड़ी अपने रियर व्यू मिरर में पीछे दिखी। ठीक है, आगे बेरिए যাবা গাড়িটাকে পিছনে मैं वहां से थोड़ा सा और आगे निकला, तो अगले 2 मोड़ के बाद मुझे वो गाड़ी फिर आगे दिखी अपने। ठीक है, খেলা दो হচ্ছে तीन बार নাকি जब हुआ तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो तो सही चक्कर क्या है। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। उसके बाद जब गाड़ी में दोबारा बैठने लगा तो वो गाड़ी मेरे फिर पीछे से आ रही है गाड़ी। तो मैंने कहा गाड़ी को रोकूंगा और रोक करके देखना है मैंने कि इसमें है क्या, पंगा क्या है। तो गाड़ी आई, मैंने उसको हाथ दिया यूं दूर से। अब जब गाड़ी का शीशा उतरा उसमें से तो मुझे 2 बंदे उसमें दिखे, लेकिन अगला वाला जो बंदा था, जो मुझे जो बेसिकली फील हुआ कि वो कुछ अनकॉन्शियस सा था या ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे कैसे करें? तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया, आप चलिए, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो गाड़ी चला रहा था बंदा, लेकिन मैं दूसरे बंदे से देखा, 2 मुझे उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। अब ये बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई वहीं पर बात। तो जब हम चमोली पहुँचे तो चमोली बोलता है तूने उस बेचारे आदमी को ऐसे ही डरा दिया। मैं कहा मैं तो दोनों को मारता सालों को निकाल के। तो दोनों को मारता? मेरी गाड़ी में तो एक ही आदमी था। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो। मैं कहा 2 आदमी बैठे हुए थे गाड़ी में। तो वो लोग आज भी उस बात को बोलते हैं कि उस गाड़ी में जो है एक ही बंदा था जो चला रहा था। मैं आज भी उस बात को बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि उस गाड़ी में 2 ही बंदे थे। গাড়ি নাকি আগে পিছনে খেলা করে, কখনো নাকি পিছনে দেখে, কখনো নাকি আগে দেখে। গাড়ি নাকি ওরকম রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে নাকি ওরকম দেখে, তারপরে নাকি আটকে যখন দেখে তখন নাকি প্রথম মানে যে দেখেছিল সে নাকি ড্রাইভার দেখে, পিছনে নাকি আরো 2 জন লোক, কিন্তু অন্যদের নাকি দেখা দেয় না। हम गाड़ी खिला लेके जा घटना। रहे थे, तो हम लोग वहाँ से जलंधर की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में जलंधर। एक स्टेशन आता है लठियानी करके, तो वहाँ पे ये हुआ था। तो वहाँ पे उसने हाथ दिया। नहीं मतलब उन्हें लिफ्ट चाहिए थी। लिफ्ट चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम बसेज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो लोग ट्रक वालों से लिफ्ट ले लेते थे। तो इसलिए उसने लिफ्ट के लिए वो गाड़ी में आई थी। तब मैंने उसको देखा। चेहरा याद है उनका? हाँ, चेहरा नॉर्मल जैसे लेडीज होती है सेम वैसे था। तो जैसे उसने हाथ दिया, लिफ्ट बॉय, मांगा, वो तो हमने उसको लिफ्ट दिया। जब वो गाड़ी के अंदर आ गई तो जो मेरे उस्ताद थे तो वो सिगरेट जला रहे थे। तो वो लेडीज थी तो उन्होंने सिगरेट बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए कि अब वो बैठ गई अंदर। लेकिन जब उनकी नज़र उसके पाँव की तरफ गई तो उसके पाँव उल्टे थे। উল্টো পা নাকি রাস্তা দিয়ে নাকি যেতে যেতে নাকি একটা মেয়েকে নাকি লিফট দেয়। সে মেয়ে নাকি যখন গাড়ির ভিতরে বসে সেই মেয়ের দিকে যখন তাকিয়ে নিচু করে পা দেখে নাকি সে পা নাকি উল্টা। तो उन्होंने एकदम से जैसे माचिस की जलाई तो वो एकदम खिड़की से बाहर भागी और ऐसा करते हुए चिल्लाते हुए गई कि मैं जल गई जल गई जल गई। तो उस टाइम मतलब वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिर गायब हो गई, मतलब दिखी ही नहीं। শোরের নাতি পুরো কাটিলা দিয়ে एक बार উঠছে की मैं গায়ে। आपको कहानी बताता हूँ कि खेती होती थी हमारे यहाँ, तो वहाँ जानवर बहुत होते थे। तो मैं नाना जी कभी मामा हम लोग मचान पे बैठते थे खेत में, जो है वो वॉच टावर जैसे लगा के। तो वो कहते थे कि देखो इनका भी हिस्सा है, इनको भी खाने देना चाहिए। एक दिन क्या हुआ, हमने देखा कि वाइल्ड बोर दौड़ते आ रहा है खेत सुकोर के बीच में। अब ये कभी नहीं होता, तो खेतों के बीच में डायरेक्ट कहाँ से पैदा थोड़ी हो जाएगा। अब खेत की ना अलग अलग सेक्शन होती है, तो एक सेक्शन में जब घुसा तो वाइल्ड बोर था, अगले सेक्शन में वो हिरण बन गया, अगले सेक्शन में आया तो वो बड़ा सा एक पक्षी बन गया क्रेन जैसा। फिर वो जब हमारे मचान के पास आई तो वो औरत हो गई। শুকর প্রথমে শুকর, তারপরে হলো হরিণ, তারপরে হলো একটা পক্ষী, তারপর নাকি অরাত। কি খেলা চলে নাকি, মস্তি করে নাকি? ভূত কি মস্তি করে? বড়কে লাড়কি দিয়ে ফাঁসিয়ে মারবো। आवाज होती है, तो मैंने आवाज नहीं की, चुपचाप बैठ। और वो मेरे आंखों के सामने वो जो औरत थी वो एक छोटी सी चूहिया बन गई।
चूहे। छोटे से ना और कि वो इंदौर खुद जो चूहे का एक वो रखते थे हम, तो वो उसमें खुद आके बैठ गई। अब वो बैठी इसलिए बिकॉज वो नाना जी कर रहे थे अपना ध्यान, और नाना जी ने फिर उस चूहा को उठाया और वो पास में एक बैम्बू की एक छोटी सी जंगल टाइप थी, उसमें ले जाकर छोड़ दिया। फिर मैं क्यूरियस ब्रेन, क्योंकि और मैं भी चीज़ें सीख रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि क्या था मुझे बताओ। तो फिर नाना जी ने मुझे कहा कि वो एक आत्मा थी जो हमारे खेत की रक्षा करती है, और जब कभी उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते उसको, और जब कभी उसको ये लगता है कि नाना जी हैं, तो वो कम्युनिकेट करने के लिए और आ जाती है। और ये जो उसने एनिमल्स के अलग अलग जो रूप बदले या हमें दिखा, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए था। ये सुनने में तो सिर्फ कहानी लगती है, और इसको प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, लेकिन ये सच्ची घटना है, मेरे साथ हुआ है। এইসব নাকি ঘটে না, যদিও বা এটা ভালো ভূত ছিল, ভয় পাইনি আমি, ভালো ভূত ছিল, কিন্তু চোখের সামনে এরকম দেখলে ওখানেই হিসু করে দেবো। তোমরা যদি এরকম দেখো তোমাদের কি হবে? বলো বলো কি হবে? चलो पॉर स्टोरी देखी। डेफिनेटली ट्रैवल एक्सपर्ट हो, पर आप हिमालय एक्सपर्ट भी हो। हिमालय के बारे में एक्सपर्ट आपको बहुत ज्यादा पता है। हाँ, मेरे को भी जो मेरे दोस्त वगैरह है उन्होंने मेरा निकनेम येती रखा हुआ है, येती। द माउंटेन मैन। द माउंटेन मैन। यति शब्द एक बार हमारी ऑडियंस को भी समझा दो कि यति शब्द के ओरिजिन्स क्या है, और आपने उस चीज के बारे में सुना क्या है? हिमालयन यटी के बारे में ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुआ है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हिमालयन यटी सिर्फ एक कहानी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है हिमालय की एक बड़ी सीक्रेट हो। अगर आप हिमाचली या उत्तराखंडी या नेपाली लोगों से यटी के बारे में पूछोगे, तो कोई ना कोई ज़रूर ये कहेगा कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में यटी या तो दिखा है या यटी के बारे में सुना है। येटी। खुद भारतीय फौज ने भी येटी साइटिंग्स रिपोर्ट की है। कहानियों की बात मानी जाए तो बोला जाता है कि येटी एक 7 फुट लंबा आदमी और बंदर का मिश्रण है। और अगर दूसरी कहानियों को माना जाए तो लोग कहते हैं कि येटी हिमालयास का रक्षक है। शायद येटी के गुजरात, जिसके बारे में जानने के लिए मानव जाति तैयार नहीं है। क्या वो हिमालय का रक्षक है, या क्या येटी हिमालय का एक राक्षस है? येटी। येटी আমি আগে শুনিনি, ইয়েটির ব্যাপারে আমি আগে শুনিনি। তোমরা কি শুনেছ? যদি জেনে থাকো ইয়েটির ব্যাপারে কমেন্ট করে জানাতে পারো, কারণ ইয়েটি সম্পর্কে অতটা বেশি জানি না, কিন্তু হ্যাঁ আমি বিগফুট জানি, বিগফুটের ব্যাপারে শুনেছি। শুনেছো তোমরা? অবশ্যই শুনেছো বিগফুট। তো সেরকম টাইপের এই আননোন জিনিস, বাট এরকম টাইপের জিনিস যাতে বেশ মজা লাগে, তাই তো? সিক্রেট। তো যাই হোক, চলো দেখি এটা কি হয়। आपको लगता है येटी एग्जिस्ट करता है? या करता होगा। देखो वो चीजें हम लोगों की पहुंच से बाहर है ना। अब हम लोग अगर हिमाचल घूमने जा रहे हैं तो हिमाचल में घूमने शिमला कुल्लू मनाली जहाँ तक रोड जा रही है वहां तक तो हम चले गए, लेकिन उस रोड के ऊपर जहाँ पर इंसान की पहुंच नहीं है, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ है। अब कहने को तो लोग बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को भी चढ़ते हैं, दे क्लाइम दोज माउंटेन्स, बट दे वुड नॉट कवर इट in the diameter and the whole thing. So you are absolutely unaware about that life, कि वो जो लाइफ है कि वहाँ पे कोई लाइफ होती भी होगी या नहीं होती होगी। तो डेफिनेटली ভয় পেয়ে গেছি। হরিণা মাসি নাকি উল্লার মতন একটু সিঙ্গামিঙ্গা নিয়ে ওঠে, নাকি ভক করে ভয় পেয়ে উঠেছে। কি ওঠে এটা? ক্যাচলাম আর হরিণ ফরিণও ভয় পাই দিচ্ছে। बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। सो मेरा भी ये मानना है कि उनका अगर कोई दुनिया है तो वी शुड नॉट ट्राई टू इंट्रूड। वैसे यार ह्यूमंस पूरी की पूरी धरती में तो हम लोग इंट्रूड कर चुके हैं, तो एटलीस्ट कुछ स्पेस ओपन छोड़ देना चाहिए एकदम। यति के बारे में आप পুরো পৃথিবীর সব পুরো 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 সব কিছুই চুষে নিয়েছি আমরা, সব চুষে নিয়েছি, চুষে মুছে আমাদের ইয়েতে চুষিয়ে নিয়েছি। কিছু তো ছাড়া উচিত না, প্রকৃতিতে আরো যারা বাস করে তাদের জন্য সবই তো চুষিয়ে অন্তরের কাছে ঢুকিয়ে নিয়েছি। आपने भी सुना? हाँ, यति के बारे में सुना है। क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं कि है, मतलब स्नोमैन। पीछे जैसे खबर सुनी थी कि एक आर्मी वाले को दिखा है, तो बहुत बड़ा पैर था जो निशान देखे थे, ওই দেখো পায়ের ছাপ। फेसबुक पे भी डाला था। तो
দ্য স্নোম্যান। পায়ের চাপ দেখো, উল্লার মতো নাকি বড় পায়ের চাপ, পায়ের তলায় যদি কেউ আসে চেপটে ওখানে চেপলে যাবে একদম পুরো। बोलते हैं कि है। आपने यति के बारे में सुना है लोकल्स के थ्रू? तो ये कहते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी है कि जो है कि ह्यूमंस हमेशा ये सोचते हैं कि दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड वॉकिंग एनिमल्स ऑन अर्थ, लेकिन नहीं, जो है कि हमसे भी सुपर स्मार्ट है, हमसे भी सुपर पावरफुल बीइंग्स जो हमारी तरह दो पैरों में चलते हैं वगैरह वो एग्जिस्ट करते हैं। और रियलिस्टिक आंसर ये है कि अगेन इट गिव्स अ पॉसिबिलिटी फॉर साइंस टू सर्च व्हाट इज बियॉन्ड अस एंड हाउ मच, एंड इट आल्सो गिव्स कि एक वो भी एक डायरेक्शन हमें देता है कि वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एवरीथिंग, हमें बहुत कुछ ढूंढना है। तो लगता है कि हिमालय में भी ऐसे पोर्शंस हैं जो कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है यार। हिमालयास पूरा ही अनएक्सप्लोर्ड है अभी। কেউ কি হিমালয় এক্সপ্লোর করতে যাবে নাকি, এরকম আননোন জিনিস এক্সপ্লোর করতে? কি বলো, কমেন্ট করে জানিও। এক্সপ্লোর করতে গেলে বলো আমিও যাব। आप क्या हिमालयास बैंग जाबो। हिमालयास कोई ऐसी छोटी भय चीज़ लगे तो ना? नहीं। अब किसी को पता है कि यार इस पहाड़ के ऊपर जहाँ जगह नहीं है पहुंचने के लिए, तो वहाँ पे कोई क्यों जाएगा और क्यों रहेगा वहाँ पर जाकर? तो ये तो आप जो हिमाचल में या उत्तराखंड में जहाँ जहाँ लोग रह रहे हो तो बहुत छोटे छोटे पोर्शन हैं यार। लेकिन कभी ये सोचा कि जैसे यहाँ रोड खत्म हो गया तो इस रोड के बाद क्या होगा? एकदम तो पहाड़ है, जंगल है, वहाँ तो कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, किसी को क्या। जितना आप लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, आप उतना ही ऑकल्ट के बारे में जानेंगे, काला जादू के बारे में जानेंगे, नेगेटिव एनर्जीज के बारे में जानेंगे, भूत प्रेतों के बारे में जानेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिस पर ज़्यादा रिसर्च आज तक नहीं हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं कि ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हज़ारों सालों से ये कहानियाँ चलते आ रही हैं तो इनके पीछे कुछ तो सच होगा। कभी भी जिंदगी में इतना घमंडी मत बनो कि आपको ये लगे कि आपको खुद सभी चीज़ों के बारे में पता है। हिमालय में बहुत राज छिपे हुए हैं, इस दुनिया में बहुत राज छिपे हुए हैं, और मानव जाति ने काफ़ी सारे राज के बारे में हाल ही में ही जानना शुरू किया है। एकदम ये था हमारा हिमालय हॉरर स्पेशल। हम्बल रहो, सीखते रहो, और अनेक लोगों की कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते रहो। তো গাইস আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ হয়ে গেল, বাট ভিডিওটা ভালো ছিল, আমার তো মজা লেগেছে, হালকা ফুলকা ভয় ছিল। তো ভিডিওটার মধ্যে যেটা বলেছে একদম ঠিক বলেছে যে কখনো নিজেকে সর্বজ্ঞানী ভেবো না, ঠিক আছে? সব জানি, আমি সেরা কখনো করে না, কারণ কেউ সব কিছু জানতে পারে না। বেশি নিজেকে শের মনে করবে, আমি শের, দেখবে ভের হয়ে মরে গেছো, বুঝেছো? কখনো শের মনে করবে না, সবসময় এটাই জানবে যে জানার কখনো শেষ হয় না। যতটুকু জেনেছো তারপর থেকে আরো অনেক কিছু জানার বাকি। কখনো ভাববে যে না আমি সব জানি, আমি করে দেবো, এই করবো, ওই করবো, হ্যান করবো, ত্যান করবো না, ওইসব একদম না, কারণ জানার কখনো শেষ নেই। তো আজকে হিমালয় যে স্টোরিগুলো শুনলাম, যে কি কি ঘটনা ঘটেছে, আননোন ঘটনা, যেগুলো এই মানুষগুলো নিজেরা এক্সপিরিয়েন্স করেছে, তো এগুলো নিশ্চয়ই এক্সপিরিয়েন্স করেছে বলেই শেয়ার করলো। তো তোমাদের সাথে যদি এরকম কোনো আনন্যাচারাল জিনিস এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে, যে তোমরা ফিল করেছো, তো আমাকে অবশ্যই জানাতে পারো, আমি অবশ্যই শুনবো, কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। তো আমারও কিছু মানে এরকম ফিল করেছি, আমার সাথেও কিছু অ্যাক্টিভিটিস ঘটেছে, এখন ঘটেনি, ছোটবেলার দিকে ঘটেছিল, তো আমিও তোমাদেরকে জানাতে পারি, ঠিক আছে? অবশ্যই জানাবো পরে। তো তোমরা বলো ভিডিওটাতে তোমাদের কেমন লেগেছে, ভিডিওটা সম্পর্কে কি জানো, ওই ইয়েটি দ্য স্নোম্যান সম্পর্কে কি জানো, তোমরা কি আদৌ জানো কি না? যদি জানো তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আমি জানতে রাজি আছি, কারণ আমি ওর ব্যাপারে অতটা জানি না, তো আমি জানতে চাই, ঠিক আছে গাইজ? তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সো বাই বাই।